Okay, so today our topic is structure theorem of abelian group. Lot of question comes in CSI and NET, GATE. Also, there are a lot of question asked in the PhD interview in this topic, which it is very important topic in group theory. So, what is the main thing about this topic? So, the main problem in group theory is that suppose given a group of order n, a group G, let's take a group G of order n. Question is that can you classify all the groups of order n? तो क्वेश्चन ये है कि सपोज यू हैव अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ग्रुप G of order n. So can you classify all the groups of order n? This is looks very difficult in case of when n is very large number. So we know that for n equal to 4 there are two groups, two non-isomorphic groups. Either it is Z4 or it is Z2 cross Z2, right? चार ऑर्डर के ये दो ग्रुप मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप. For n equal to 5 it is only possible, it is n equal to 5 means it is prime order group, so it will be cyclic, so only possible group is Z5. For n equal to 6 the only possible groups what is S3 and Z6. ऐसे n equal to 7 के लिए एक ही ग्रुप मिलेगा since it is prime order again Z7. ऐसे n equal to 8 के लिए कुछ क्लासिफिकेशन होगा, इतना नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा. n equal to 10 के लिए भी उतना कुछ मिलेगा. पर when n is so large number, the question is when n is large, it is difficult, then it is difficult to classify all the groups of order n. तो जब n बहुत लार्ज होगा तब हम लोग क्लासिफिकेशन करना ग्रुप का कि इतना इन ऑर्डर के इतना सारा ही ग्रुप मिलेगा नॉन आइसोमॉर्फिक, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, वो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. पर इट इज इजी. बट but it is easy in case of abelian group of order n. That is given any abelian group of order n, we can easily classify all the non-isomorphic abelian groups of order n. So what is the tool to classify the all non-isomorphic abelian group of order n? The tool is the structure theorem of abelian group. Okay, so now we introduce this theorem, which is very important theorem in abelian groups, the structure theorem of abelian group, which provides the what is the possible structure of abelian group. So this is the main motivation for
the structure theorem of abelian group. Okay, so now we will state the statement of the theorem. So theorem, what is theorem? Let G be a finite group, G be a finite abelian group, right? Finite abelian group of order n. So n is a, here n is a natural number, so it has a prime factorization. So let n equal to p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2 dot dot pk to the power alpha k be the unique prime factorization of n. Then what is the statement of this theorem? Then first statement, it has three statements. Okay, the first statement is that then here G is a finite abelian group of order n and we have a prime factorization of n. So in that case G will be isomorphic to some a1 cross a2 dot dot ak. So G is a abelian group order n, then G will be isomorphic where n is a prime factorization p to the power alpha 1 up to p to the power alpha k, pk to the power alpha k. Okay, so in that case G will be isomorphic to some groups a1 cross a2 up to ak, where इस ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑल ai का ऑर्डर, where all ai का ऑर्डर होगा pi to the power alpha i. ओके फाइन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि G ऐसे आइसोमॉर्फिक होगा. यहाँ पे a1 a2 क्या है हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द सेकेंड स्टेटमेंट? Second statement tells you that each यहाँ पे क्या मिला था? each ai का ऑर्डर क्या है? pi to the power alpha i. इसका ऑर्डर तो ये है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर है. सेकंड मतलब बोल रहा है each ai का ऑर्डर p to the power alpha i है with ai will be isomorphic to some z pi to the power, यहाँ का सिंस ai का ऑर्डर, यहाँ ai का सिर्फ वन ही प्राइम डिवाइजर है, सो यहाँ पे एक ही प्राइम डिवाइजर मिलेगा हर एक आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप में. ai will be isomorphic to z pi to the power beta 1, okay, cross z pi to the power beta 2 cross z pi to the power बीटा टी मान लो. ओके, अब देखो ai का ऑर्डर क्या है? ai का ऑर्डर है p टू द पावर अल्फा i एंड इसका ऑर्डर क्या है? दिस राइट साइड में जो ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या है? p1 टू द पावर pi टू द पावर, यहाँ पे pi है, pi टू द बीटा 1 डॉट pi टू द पावर बीटा 2 अप टू pi टू द पावर बीटा t, राइट? सो दैट्स मीन अल्फा i विल बी इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 अप टू बीटा टी. तो ये जो बीटा 1 बीटा 2 मिल रहा है जिसके साथ मतलब z ai will be isomorphic, तो ये क्या हो रहा है अल्टीमेटली? दिस इज ए पार्टीशन ऑफ ai, राइट? तो पहले स्टेटमेंट में ये बोला है कि g will be isomorphic to such groups where each ai का ऑर्डर होगा, where each ai का ऑर्डर होगा pi to the power alpha i, and each ai क्या फॉर्म में होगा वो सेकंड स्टेटमेंट में बता रहा है. ai का फॉर्म कैसा होगा? ऐसा फॉर्म होगा ai का, where this beta I is actually the partition of ai. Okay, so ये होगा सेकंड स्टेटमेंट.
थर्ड स्टेटमेंट यूनिकनेस के बारे में बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे एक नोटेशन है वो बोल देता हूँ। यहाँ पे ये जो बीटा आई ये क्या होता है, यहाँ पे जो बीटा आईज है ये दिस इज नथिंग बट द पार्टीशन ऑफ अल्फा आई, राइट? सो हियर t and beta t number of t number of betas है यहाँ पे। here t and beta 1 beta 2 up to beta t depends on I, ये आई के ऊपर डिपेंड है। मतलब यहाँ पे अल्फा आई के जगह अल्फा जे लोगे तो ये जो पार्टीशन होगा डिफरेंट होगा। और देयर एग्जिस्ट यहाँ पे टी नंबर ऑफ बीटास मिल रहा है तो वहाँ पे ज्यादा भी मिल सकते हैं, मतलब जो भी होगा वो पार्टीशन होगा। ओके। और यहाँ पे बीटा आइस को क्या बोलते हैं? बीटा आइस आर कॉल्ड इनवेरिएंट फैक्टर्स। बीटा आइस को बोलते हैं इनवेरिएंट फैक्टर। ओके। तो हमने दो स्टेटमेंट तो पढ़ लिया स्ट्रक्चर थ्योरम के। थर्ड एक स्टेटमेंट है, इसका थ्योरम थोड़ा बड़ा है, बट जब हम लोग इसका एक प्रॉब्लम्स करेंगे या फिर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसका इस थ्योरम के रिलेटेड, तो वो देखने से ये पूरा स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वेट टिल द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जब होगा ना तब बहुत मजा आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और वो एग्जाम्पल करने से ये तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो क्लियर हो जाएगा एकदम। ओके। सो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द डिकम्पोजिशन द डिकम्पोजिशन इन वन। वन में क्या किए थे डिकम्पोजिशन किसका? वन में जी को डिकम्पोज किए थे, राइट? ये जी का डिकम्पोज, डी का, ये जी का डिकम्पोजिशन है। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में किसका डिकम्पोज किया है? हर एआई का डिकम्पोजिशन किया हो, राइट? दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ ईच एआई। तो दो डिकम्पोजिशन हुआ है। सो यहाँ पे बोल रहा है द डिकम्पोजिशन इन वन एंड टू इज यूनिक। मतलब हर एक फिक्स्ड ग्रुप जी के लिए ये जो डिकम्पोजिशन है वो यूनिक होगा। इज यूनिक, इसका मतलब क्या है? दैट इज इफ जी का कोई और एक और डिकम्पोजिशन मिलता है, सपोज दैट इज थ्रू बीटा, दैट इज थ्रू बी। यहाँ पे एआई के थ्रू में एक डिकम्पोजिशन मिला था फर्स्ट स्टेटमेंट में। सपोज यू हैव अनदर डिकम्पोजिशन थ्रू बी, बी वन बी टू अप टू बी के, विथ बी आई का ऑर्डर है, सेम ऑर्डर होगा जैसे ए आई का था, पी आई टू द पावर अल्फा आई फॉर ऑल आई। देन this uniqueness is telling you that bi will be isomorphic to ai। ओके, नॉट ओनली दैट। तो यहाँ पे पहले जी का डिकम्पोजिशन किया था, फिर क्या किया था? एआई का डिकम्पोजिशन किया था, तो यहाँ पे बीआई का भी एक डिकम्पोजिशन रहेगा। तो बीआई के अगेंस्ट में भी कुछ इनवेरिएंट फैक्टर रहेगा हर एक बीआई के अगेंस्ट में। सो देन बीआई इज आइसोमॉर्फिक टू एआई। नॉट ओनली दैट, बीआई एंड एआई have same invariant factor। तो थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि तुम जी को दो तरीके से डिकम्पोज किए हो और दोनों में सेम इन्वेरिएंट फैक्टर्स आ रहा है, तो मतलब वो दो डिकम्पोजिशन इज सेम होगा। अगर तुम इन्वेरिएंट फैक्टर डिफरेंट लिए हो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में, अगर दो डिकम्पोजिशन लिए हो, सपोज इन सम डिकम्पोजिशन यू आर गेटिंग बीटा आइस एंड सम डिकम्पोजिशन यू आर गेटिंग बीटा आई डैश। ओके। सपोज जी का तुम दो, मतलब थर्ड स्टेटमेंट एक बार क्लियर कर देता हूँ। सपोज तुम जी का दो डिकम्पोजिशन लिए हो। ओके। एक डिकम्पोजिशन में इनवेरिएंट फैक्टर्स आ रहा है, यहाँ पे इनवेरिएंट फैक्टर्स लिख देता हूँ। इनवेरिएंट, एक केस में
सपोज मतलब एक बार सपोज कोई एक ग्रुप जी का, ठीक है, इनवेरिएंट फैक्टर्स आ रहा है बीटा वन, बीटा टू, लेट से अप टू बीटा के, ये इनवेरिएंट फैक्टर्स है। और कोई और एक ग्रुप जी का, सर यहाँ पे जी का ऑर्डर मान लो एन है, कोई और एक ग्रुप जी डैश है जिसका ऑर्डर भी एन है, ओके, उसका इनवेरिएंट फैक्टर्स आ रहा है बीटा वन डैश, बीटा टू डैश, बीटा के डैश, ओके। सो इफ दिस बीटा, ये इनवेरिएंट फैक्टर्स और ये जो इनवेरिएंट फैक्टर्स है, ये दो सेट अगर अनइक्वल होगा, ये सेट और ये सेट, इफ दे आर अनइक्वल, दे आर नॉट इक्वल, देन जो जी मिलेगा, जी डैश मिलेगा, वो तो नॉन आइसोमॉर्फिक होगा। जी एंड जी डैश वी विल नॉन आइसोमॉर्फिक। मतलब टू डिफरेंट इनवेरिएंट फैक्टर्स का सेट अगर मिलता है, तो जो ग्रुप्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो सेट मिला है, वो दो ग्रुप नॉन आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ पे जी के कॉरस्पॉन्डिंग, मान लो जी का ऑर्डर एन है और एक ग्रुप है जी डैश, उसका भी ऑर्डर एन है, तो जी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर जो इनवेरिएंट फैक्टर्स मिल रहे हैं, सपोज दैट इज बी बीटा वन, बीटा टू अप टू बीटा के, एंड जी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग इनवेरिएंट फैक्टर मिल रहा है बीटा वन डैश, बीटा टू डैश अप टू बीटा के डैश, अगर ये दो सेट नॉट इक्वल हुआ, ये दो सेट, दिस टू सेट्स, if these two sets are not equal, then G is not isomorphic to G dash। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है थ्री का। अगर दो इक्वल होगा तो उसका इनवेरिएंट फैक्टर सेम होगा, ये बोल रहा है, ये थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है। सो अगर इनवेरिएंट फैक्टर, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या, अगर इनवेरिएंट फैक्टर सेम नहीं हुआ तो दो ग्रुप, दो दैट टू ग्रुप्स विल बी नॉन आइसोमॉर्फिक, ओके। थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर इनवेरिएंट फैक्टर सेम होगा, सो दैट ग्रुप विल बी आइसोमॉर्फिक। तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, अगर मतलब अगर दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होगा तो उसका सेम इनवेरिएंट फैक्टर मिलेगा, ये थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हुआ, अगर टू डिफरेंट इनवेरिएंट फैक्टर्स मिल रहा है, सो दैट ग्रुप्स, कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप्स विल बी नॉन आइसोमॉर्फिक, ओके। डिफरेंट मिलेगा तो नॉन आइसोमॉर्फिक होगा, अगर सेम इनवेरिएंट फैक्टर मिलेगा तो दैट ग्रुप्स विल बी आइसोमॉर्फिक। तो इसका एग्जांपल कर लेते, पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल से पूरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। सो वेट फॉर द एग्जांपल। Suppose in some interviews or in some exam you are asked to find, ये हम इलोबरेटली इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला बता देंगे। तो एग्जाम में फॉर्मूला से हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला डाल दोगे तो तुरंत निकल जाएगा। पर यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो लेट यू आर आस्क्ड टू फाइंड, लेट p be a prime number, then you are asked to find number of abelian group of order p to the power 4। तो तुम्हें बोला है p टू दी पावर 4 ऑर्डर के कितना ग्रुप से नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, वो फाइंड करो। ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ओके। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ तो क्वेश्चन और भी जस्टिफाइड रहेगा। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप ऑर्डर p टू दी पावर 4, ओके। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, n इज p टू दी पावर 4। सो यहाँ पे एक ही प्राइम फैक्टर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग g विल बी आइसोमॉर्फिक टू सम a1। यहाँ पे प्राइम फैक्टर कितना था, k नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर था, तो इसलिए k नंबर ऑफ ग्रुप्स मिला था इस केस में, राइट। बट यहाँ पे एक ही प्राइम फैक्टर है विच इज p, तो इस केस में सिर्फ एक ही मिलेगा a1। सो g विल बी आइसोमॉर्फिक टू a1 where order of a1 is p to the power 4, राइट। अब क्या मिल रहा था, फिर हम ये सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कर रहे थे, a1 को डिकम्पोज कर रहे थे। सो सेकेंड स्टेटमेंट से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड से ये हो रहा है कि a1 विल बी आइसोमॉर्फिक टू some z beta 1 cross z beta 2 cross something z beta k, right।
not only that, their alpha is 4 equal to, that is the partition of beta is or the partition of this alpha i। तो यहाँ पे अल्फा क्या था, अल्फा का ये तो 4 इक्वल, अल्फा तो 4 था राइट, यहाँ पे अल्फा जो था वो 4 है, तो यहाँ पे अल्फा विल बी 4 दैट इज इक्वल टू द पार्टीशन, राइट, पार्टीशन ऑफ अल्फा 4 का पार्टीशन मिलेगा यहाँ पे बीटा के। ये सेकंड स्टेटमेंट था, यहाँ पे एक ही प्राइम फैक्टर था तो इसलिए हम लोग 4 ही लिए हैं। ओके, सो 4 विल बी इक्वल टू दिस पार्टीशन। यहाँ पे बीटा इज क्या, ऑल पॉसिबल जितना डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन मिलेगा उतना डिफरेंट डिफरेंट हम लोग को ग्रुप मिलेगा, वो थर्ड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट याद है ना कि जितना डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है, इनवेरिएंट फैक्टर्स है, दिस आर ऑल इनवेरिएंट फैक्टर्स राइट। तो जितना डिफरेंट इनवेरिएंट फैक्टर्स मिलेगा, दिस आर इनवेरिएंट फैक्टर, तो जितना इन डिफरेंट इनवेरिएंट फैक्टर्स मिलेगा उतना नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिलेगा। अगर इनवेरिएंट फैक्टर सेम होता है तो ग्रुप सेम हो जाता है। तो हम लोग 4 का डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन करेंगे। ये तो बीटा इस क्या कर रहा है, 4 को पार्टीशन कर रहा है, तो we will take different different partition of 4 and corresponding to that partition we will get different groups। okay, so इसके लिए लिख देते हैं, एक साइड पे हम लोग इनवेरिएंट फैक्टर लिखते हैं और दूसरा साइड पे लिखते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन का पार्टीशन, n इक्वल टू 4 का पार्टीशन लेंगे, मतलब इन का बीटाइज क्या क्या हो सकते हैं, बीटाइज 4 का पार्टीशन है, तो बीटाइज ये हो सकता है ओनली 4 हो सकता है, 3 प्लस 1 हो सकता है, मतलब इससे इससे हम लोग निकाल रहे हैं ऑल पॉसिबल बीटा इज सच दैट दिस सम विल बी 4। सो 3 प्लस 1 हो सकता है, 2 प्लस 2 हो सकता है, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 हो सकता है, एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो सकता है। तो इस केस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या ग्रुप मिलेगा, इससे देखो, ये वाला से देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही बीटा आइस आ रहा है, मतलब बीटा 1 मान लो, उसके केस में ये बन जाएगा z टू द पावर, यहाँ पे p था सॉरी, यहाँ पे p टू द पावर बीटा, p था सॉरी, p टू द पावर बीटा 1, p टू द पावर बीटा 2, मतलब p था यहाँ पे p टू द पावर बीटा, p टू द पावर अल्फा। ओके, तो इस केस में मिलेगा p टू द पावर 4, इस केस में मिलेगा z p क्यूब क्रॉस z p, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा z p स्क्वायर क्रॉस z p स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा z p स्क्वायर क्रॉस z p, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा z p क्रॉस z p क्रॉस z p क्रॉस z p। okay, so these are all possible non-isomorphic group of order p to the power 4। तो कितना मिला यहाँ पे एक्चुअली, एक एक दो तीन चार पाँच, सो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक group of non-isomorphic abelian group of order p to the power 4 equal to 4 is equal to 5 right, यहाँ पे तो 5 मिले हैं, 5 which is actually equal to number of partition of 4। यहाँ पे 5 क्यों मिले हैं, क्योंकि हम 4 को 5 तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं राइट, मतलब 4 का 5 नंबर ऑफ, 4 का 5 नंबर ऑफ पार्टीशन है, तो जितना पार्टीशन मिल रहा है एक एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिल रहा है। यहाँ पे 4 का 5 पार्टीशन था, 1 2 3 4 5, तो हर एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को एक डिफरेंट डिफरेंट नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिला है। तो यहाँ पे देखना ईच ग्रुप, ये वाला से नॉन आइसोमॉर्फिक हुआ, तो फिर सेकंड वाला थर्ड वाला से नॉन आइसोमॉर्फिक, थर्ड फोर्थ से नॉन आइसोमॉर्फिक, हर एक ग्रुप नॉन आइसोमॉर्फिक है, कोई किसी के साथ नॉन मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो कैसे नॉन आइसोमॉर्फिक है वो एक बार सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इस ग्रुप का, ये ग्रुप साइक्लिक है पहला वाला,
सेकेंड वाला साइक्लिक नहीं है। पहले वाला में मतलब हाईएस्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर पी टू द पावर 4 हो सकता है। सेकेंड में हाईएस्ट एलिमेंट का ऑर्डर पी टू द पावर 3 हो सकता है। ओके, थर्ड में पी स्क्वायर हो सकता है, फोर्थ में पी स्क्वायर हो सकता है, पर इसके पास जैसे पी मतलब पी ऑर्डर के जो एलिमेंट मतलब ये थर्ड वाला जो फोर्थ वाला है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला और फोर्थ वाला है इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर देख लेना डिफरेंट आएगा, थर्ड फोर्थ, फिर ऐसे फोर्थ और फिफ्थ में भी मतलब डिफरेंट आएगा। तो बात ये है कि हर एक ग्रुप जो है यहाँ पे नॉन आइसोमॉर्फिक है, तो हर एक फोर के पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिल रहा है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 54 इज एक्चुअली पार्टीशन ऑफ फोर। मतलब फोर के जितना पार्टीशन होगा हर एक पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग उतना ग्रुप्स मिलेगा तुमको। तो इन जनरल स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे तो फोर एक पर्टिकुलर नंबर है, फोर के जगह पे फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, तो आंसर क्या है इन जनरल। इन जनरल स्टेटमेंट क्या है, इन जनरल स्टेटमेंट ये है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, number of non-isomorphic group of order p to the power n is actually number of partition of n। मतलब यहाँ के फोर के जितना पार्टीशन मिले थे उतना नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिला था। अगर तुम्हारे पास पी टू द पावर n दिया है जी का ऑर्डर, तो कितना नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिलेगा, पार्टीशन ऑफ n। यहाँ पे फोर के केस में पार्टीशन ऑफ फोर मिला था, यहाँ के n के केस में पार्टीशन ऑफ n मिलेगा। सो एक जनरल प्रॉब्लम ले लेते हैं। इस केस में हम जी का एक ही प्राइम फैक्टर लिए थे जो कि पी है। तो इन जनरल जी का तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो सकता है, जो थ्योरम का भी स्टेटमेंट है कि ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लिए थे। तो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जहाँ पे जी का मतलब एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो। सो वो प्रॉब्लम एक ले लेते हैं। ओके, मोर जनरली फाइंड नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन, ये बात लिखना चाहिए। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन एबेलियन ग्रुप of order, let's take n equal to 1800। ओके, तो इस ऑर्डर के कितना हम लोगों के पास नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप मिलेगा, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप, सॉरी नॉन एबिलियन लिख दिया था यहाँ पे, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप। इस ऑर्डर के कितना नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप है वही फाइंड करना है हम लोग को। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से एकदम क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट से जी अगर इस ऑर्डर का होगा, लेट जी का ऑर्डर ये है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जी से एबिलियन। तो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जी विल बी आइसोमॉर्फिक टू, पहले यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू n इज इक्वल टू 1800, तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यहाँ पे 2 टू द पावर 3, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से बोल रहा है जी विल बी आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ पे तीन प्राइम फैक्टर है तो यहाँ पे तीन आएगा, a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3, वेयर a1 का ऑर्डर क्या होगा 2 टू द पावर 3, a2 का ऑर्डर क्या होगा 3 स्क्वायर एंड a3 का ऑर्डर क्या आएगा 5 स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट था कि ai का फॉर्म कैसा रहेगा इस केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ai का ऑर्डर तो वो ai का मतलब ai विल बी आइसोमॉर्फिक टू, इस केस में था ai विल बी आइसोमॉर्फिक टू
Z beta 1 cross Z beta 2 up to Z beta k, where beta is the partition of ai, right? pi to the power था यहाँ पे, pi to the power beta है, pi to the power beta 1 beta 2 up to pi to the power beta k, right? And alpha i का ai का ऑर्डर to the power alpha i था, तो alpha i is a part, beta i is a partition of alpha i, right? ये था सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या हम लोग पहले केस में क्या किया थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही A1 मिल रहा था तो सिर्फ A1 का ही पार्टीशन लिए थे। यहाँ पे A1 A2 A3 है, तो इन तीनों का ये फॉर्म कैसा होगा, मतलब तीनों के लिए हम लोग पार्टीशन करेंगे। पहले ये लोग A1 के लिए करते हैं, तो व्हाट इज द पॉसिबल फॉर्म ऑफ A1। यहाँ पे सिर्फ एक था तो एक एक उस एक ही का मतलब A1 का ऑल पॉसिबल फॉर्म्स निकले था, राइट? तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 के ऑल पॉसिबल फॉर्म्स निकालेंगे, ओके। So possible forms of A1, तो A1 का ऑर्डर क्या है, A1 का ऑर्डर है 2 to the power 3, तो इस केस में जो अल्फा ई है दैट इज 3, अल्फा इक्वल टू 3, तो हम लोग इनवेरिएंट फैक्टर 3 का निकालेंगे, मतलब 3 का पार्टीशन निकालेंगे। एक साइड में इनवेरिएंट फैक्टर होगा, एक साइड में ग्रुप्स होगा, तो 3 का पार्टीशन क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 प्लस 1 हो सकता है, एंड 1 प्लस 1 हो सकता है, राइट? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, z2 to the power z2 to the power 3, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा z2 स्क्वायर क्रॉस z, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा z2 क्रॉस z2 क्रॉस z2। तो ai इस इन तीनों में से कोई एक फॉर्म का होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। फिर a2 का निकालेंगे, a2 का क्या होगा, a2 के लिए इनवेरिएंट फैक्टर आएगा, अरे यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप्स आएगा। A2 के लिए क्या है, A2 का ऑर्डर क्या था, A2 का ऑर्डर था 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का पार्टीशन लेंगे, यहाँ पे अल्फा 2 जो है वो 2 है, तो 2 का पार्टीशन लेंगे। 2 का पार्टीशन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 प्लस 1 हो सकता है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या मिलेगा, Z3 स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा Z3 का Z3, राइट? मतलब 1 1 था, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, तो Z3 का Z3, यहाँ पे 2 था तो 2 डायरेक्ट हो गया। फिर A3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, A3 का ऑर्डर क्या है, A3 का ऑर्डर है 5 स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे हम इसका पार्टीशन लेंगे, 2 का पार्टीशन लेंगे, यहाँ पे A3 2 है, इनवेरिएंट फैक्टर्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप्स, ओके फाइन। तो इनवेरिएंट फैक्टर्स 2 के कितना होगा, 2 हो सकता है, 1 प्लस 1 हो सकता है, इसके केस में जो आएगा वो आएगा Z5 स्क्वायर एंड Z5 क्रॉस Z5, सो ये दो पॉसिबल। सो जी क्या था, जी था इन तीनों का प्रोडक्ट, राइट? जी था इन तीनों का प्रोडक्ट, बट ए आई का कितना पॉसिबिलिटीज है, ए वन का कितना पॉसिबिलिटीज है, ए वन का 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3। फिर ए टू का है, यहाँ पे ए टू था, जी का जी इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, ए टू का कितना पॉसिबिलिटीज है, ए टू का 2 पॉसिबिलिटीज है, तो एंड ए थ्री का कितना पॉसिबिलिटीज है, ए थ्री का भी 2 पॉसिबिलिटीज है, तो जी का कितना पॉसिबिलिटीज होगा, तो यहाँ से होगा क्या, जी का पॉसिबिलिटीज होगा, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 2 है। मैं एक बार लिखता हूँ, जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए थ्री, इसका 3 पॉसिबिलिटीज है, इसका चॉइस 2 है, इसका चॉइस 2 है, तो जी का कितना टोटल चॉइस मिलेगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मतलब 12। तो जी देयर एग्जिस्ट 12 नंबर ऑफ ग्रुप्स, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप। देखो यहाँ पे जो भी ग्रुप्स मिल रहा है सब एबिलियन ग्रुप है, राइट?
एंड ईच ऑफ दिस आइसोमॉर्फिक, तो ये होगा 12 number of, there exists 12 number of non-isomorphic abelian group of order 1800. ओके, तो ऐसे सॉल्व होगा, मतलब पहले A1 का पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 2। अब देखो A1 का पॉसिबिलिटीज, ये जो 3 आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 का कितना पार्टीशन है, 3 नंबर ऑफ पार्टीशन है। इसका ऑर्डर था 2 to the power 3, राइट। तो 3 का 3 नंबर ऑफ पार्टीशन है, इसलिए यहाँ पे 3 आया। फिर इसका ऑर्डर था, A2 का ऑर्डर कितना था, A2 का ऑर्डर था 3 स्क्वायर, तो 2 का 2 नंबर ऑफ पार्टीशन है, तो इसलिए यहाँ पे 2 नंबर ऑफ चॉइस ऑफ A2 आया। फिर A3 का 5 स्क्वायर है, तो न्यूमर मतलब स्क्वायर्ड वाला मतलब पावर पे जो टर्म आ रहा है उसका जितना पार्टीशन होगा वो ग्रुप का उतना ही पॉसिबिलिटीज रहेगा। यहाँ पे A3 का ऑर्डर 5 स्क्वायर था, तो पावर में 2 है, तो A3 का पार्टीशन ऑफ 2 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो 2 का कितना पार्टीशन होता है, 2 नंबर ऑफ 2 होता है, राइट। तो इसमें A3 का चॉइस 2 आएगा, तो टोटल जी का चॉइस कितना आएगा, 3 cos 2 cos 2 मतलब 12। सो इन जनरल इफ order of G something p to the power alpha 1, p to the power alpha 2 up to p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2, pk to the power alpha k। सो ये थ्योरम के जनरल स्टेटमेंट ये है। सो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर ए, मान लो n है, ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू, पहले A1 का पार्टी अल्फा 1 का पार्टीशन, number of partition of alpha 1 cross number of, अच्छा अच्छे से लिख देता हूँ ये वाला, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप ऑर्डर n कितना होगा, जहाँ पे n ये है, नंबर ऑफ न्यूमरेटर का जितना पार्टीशन है उसका प्रोडक्ट, मतलब इसके पावर में जो पार्टीशन है उसका प्रोडक्ट, ये अल्फा के, नंबर ऑफ पार्टीशन अल्फा 1 क्रॉस नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अल्फा 2 क्रॉस अप टू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अल्फा के, राइट। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन, मतलब अगर एग्जाम में ये पूछेगा, सपोज एग्जाम में ये पूछता है, एक तुरंत में हो जाएगा। सपोज एग्जाम में ये पूछा है, ऑर्डर ऑफ जी इज n इज एक्चुअली 2 to the power 3 क्रॉस 5 स्क्वायर क्रॉस 7 स्क्वायर। सो यहाँ पे बोला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन नॉन आइसोमॉर्फिक, total number of non-isomorphic abelian group of order n, इन ऑर्डर के कितना मिलेगा, जहाँ पे n ये वाला है, दैट इज इक्वल टू पार्टीशन ऑफ 3, पार्टीशन ऑफ 3 ये वाला, फिर पार्टीशन ऑफ 2 क्रॉस पार्टीशन ऑफ 2 क्रॉस, फिर ये पार्टीशन ऑफ 2। 3 का कितना पार्टीशन है, 3 का पार्टीशन होता है 3, 2 का कितना है 2 क्रॉस 2, मतलब यहाँ पे भी 12 होगा, ओके। इन जनरल सपोज यहाँ पे दिया है 5 to the power 11 क्रॉस n का ऑर्डर, सपोज 5 to the power 11 क्रॉस 7 to the power
12 क्रॉस 13 to the power 15। तो इस केस में कितना नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप होगा इस ऑर्डर का? तो वो होगा पार्टीशन ऑफ 11। 11 का कितना पार्टीशन है वो निकाल लेना। क्रॉस पार्टीशन ऑफ 12 क्रॉस पार्टीशन ऑफ 15, इतना होगा। मतलब एक झटके में तुम सॉल्व कर सकते हो। और इसका बीच का जो थ्योरी है तो वो है स्ट्रक्चर थ्योरम। ओके, तो इससे आ रहा है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ यही वाला पूछेगा, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज दिस, how many groups, how many abelian groups of non-isomorphic abelian group of this order। तो इससे ही हमारा स्ट्रक्चर थ्योरम ऑफ एबेलियन ग्रुप का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये वाला वीडियो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरे बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। मतलब एक बार थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है या फिर मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर एक दो बार देख लेना तो ये आसान हो जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करना, या फिर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, बाय।